آپ حضرات اپنے قائد اعظم ڈاکٹر محمد ایوب کو دیکھیں بھی، اور ابھی میرے بعد حضور والا کو آپ حضرات کو سننا بھی ہے، اور اپنی اپنی باتیں ان کی بارگاہ میں رکھنی بھی ہے۔ لہذا شانتی کا ماحول بنائیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے قائد اعظم ڈاکٹر محمد ایوب سرجن کی باتیں سنیں۔ آ جائیے، بڑھ جائیے۔ دیکھیے آپ کے بیچ عالمی شہرت یافتہ قومی صدر پیس پارٹی عالی جناب لائق صدر احترام ڈاکٹر محمد ایوب سرجن صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے بالکل بغل میں ایکلا پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش عالی جناب اروند نشاد جی وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے قومی صدر کے بالکل بغل میں آپ کے پردھان بڑے جاہ جلال انداز میں الحمدللہ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور استاد الاساتذہ حضرت علامہ راشد عمر مدنی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے پیس پارٹی کے راشٹریہ مہاسچو علماء کوآرڈینیٹر حضرت علامہ کلیم اللہ فیضی صاحب وہ بھی بڑے شان و مان کے ساتھ ہماری پشت پناہی کے لیے موجود ہیں، اور ہماری پارٹی کا لاجواب نیتا سدھارتھ نگر کا ضلع اپادھیکش یوا نیتا علی جناب انصر رضا خان وہ بھی موجود ہیں، اور علامہ ظہور خان کی ایک کاوش ہے اور پردھان کی مہربانیاں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی وہ آیت کریمہ جو پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 59 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم سب کا رب اپنی لاریب کتاب قرآن پاک کے 5واں پارہ 5ویں رکوع سورہ نساء آیت نمبر 59 پر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اور اے ایمان والو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنی جماعت میں سے اپنے امیر کا حکم مانو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بول دو میرے بھائیو، قرآن کہہ رہا ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور اپنی جماعت میں سے اپنے امیر کا حکم مانو۔ لیکن قرآن نے شرط لگا دی ہے کہ آپ کا امیر آپ کی جماعت میں سے ہو، آپ کا امیر آپ میں سے ہو۔ اگر آپ کی جماعت میں سے نہیں تو آپ کا امیر نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ اور نیتا ہونے کے لیے، آپ کا نیتا ہونے کے لیے آپ کی جماعت سے ہونا شرط ہے، یہ قرآن بول رہا ہے۔ یہ تو قرآن کا فرمان ہے۔ قرآن نے کہا کہ اپنی جماعت میں سے اپنا نیتا چنو۔ تو بتاؤ 78 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے، 78 سالوں سے ہم نے اپنی جماعت میں سے اپنا نیتا چنا؟ آج ہمارا کوئی نیتا ہے؟ آج ہمارا کوئی امیر ہے؟ آج ہمارا کوئی اگر نیتا ہوتا تو آج ہماری حالت ہوتی؟ ایمان سے بتانا، آج ہماری حالت ہوتی؟ اگر آج ہمارا کوئی نیتا ہوتا تو آج ہمارے مدرسوں کی جانچ ہوتی، ہماری مسجدوں کی کھدائی ہوتی، داڑھی ٹوپی والوں کو آتنکواد کہا جاتا۔ آج اگر ہمارا کوئی نیتا ہوتا تو ہم ذلیل و خوار ہوتے، ہم ذلت و رسوائی میں ڈوبے ہوئے ہوتے، نہیں ہوتے۔ لیکن ہم نے اپنے اللہ کی بات نہ مانی، رسول پاک کے فرمان پر عمل نہ کیا، اس لیے آج ہم مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کوئی نیتا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم نیتا بنا لیے ہوتے، جیسے اور قوموں نے اپنا نیتا چن لیا اور برادریوں نے اپنوں میں سے اپنا نیتا چن لیا، یادو بھائیوں کو دیکھو، ان کی ایک پارٹی ہے جسے وہ سپا پارٹی کے نام سے جانی جاتی ہے، انہوں نے اپنا نیتا اکھلیش یادو جی کو چن لیا ہے، اکھلیش یادو کو اپنا نیتا مان لیا ہے۔ اور دیکھو
दलित भाइयों को देखो, उन्होंने अपना नेता मायावती जी को मान लिया है। लेकिन हम तादाद में सूबे उत्तर प्रदेश में 25% है, लेकिन आज हमारा कोई नेता नहीं है। हमने किसी को अपना नेता नहीं माना, और नेता मानने की बात आए तो हमने गैरों में अपना नेता ढूंढा, गैरों में अपना अमीर तलाश किया, जबकि कुरान कह रहा है खबरदार, गैर तुम्हारा नेता नहीं हो सकता है, गैर तुम्हारा अमीर नहीं हो सकता है। अगर अमीर की तलाश करनी है, नेता का चुनाव करना है, तो अपनी जमात में से अपने नेता का चुनाव करो। जो कुरान कह रहा, लेकिन हमने कुरान की बात भी ना मानी, हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर अमल ना किया। आओ मैं एक हदीस बता के अपनी बातें खत्म कर दूंगा, क्योंकि हमें सुना है अपनी कौमी सदर को। हदीस पाक है, तिरमिज़ी की हदीस है, जो सिहाए सित्ता की बड़ी मशहूर किताब है। रावी हदीस हज़रत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उनसे हदीस मरवी है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन बिल जमाअति वस्सम'i वत्ताअति वल हिजरति वल जिहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना। ये कौन कह रहे हैं? कुल नबियों के सरदार का फरमान है। ये कौन कह रहे हैं? ताजदारे अंबिया अलैहिस्सलाम का फरमान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों में तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ। कितनी बातों का? अरे बोल दो मेरे भाइयों, 5 बातों का हुक्म देता हूँ। अल्लाह अमरनी बिहिन्ना, और यही मेरे रब का भी हुक्म है। तो क्या हमें हुक्म खुदा, हुक्म मुस्तफ़ा मानना चाहिए या नहीं? अगर हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, कलमा गो है, तो अपने रब के हुक्म पर हमें चलना चाहिए, अपने नबी के हुक्म को मानना चाहिए। जो अपने अल्लाह अपने रसूल की बात ना माने, जो अपने अल्लाह अपने रसूल के हुक्म पर अमल ना करे, क्या वो मुसलमान हो सकता है? क्या वो मुसलमान रह सकता है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ 5 बातों की। पहली बात यह है कि बिल जमाअत, अपनी एक जमात बना लो, अपनी एक तंजीम बना लो, अपनी एक पार्टी बना लो। क्या हमारी कोई पार्टी है? हमारी कोई पार्टी है? कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, कभी जनता दल, जहां देखे हम भागते रहे। हमारा कोई पहचान है? हमारा कोई झंडा है? अरे बोलो। और 1400 साल पहले ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मुसलमानों में तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, तुम पर फर्ज है कि तुम अपनी एक पार्टी बना लो। अगर आज हमारी कोई पार्टी होती तो ये खराब दिन हमारे सामने होते, ये बदतर से बदतर हालात हमारे सामने होते। आज हमारे भाइयों से तासुब न करते लोग, आज हमें आतंकवाद न कहा जाता, आज हमारे मदरसों की जांच न होती, आज हमारी खानकाहों को न खुदाई होती, हमारी मस्जिदों की खुदाई न होती। आज अगर हमारी कोई पार्टी होती, हम अपने अल्लाह की बात, अपने नबी की बात को मान लेते, तो ये दिन होते। तो गलती किसकी है? डॉक्टर अयूब साहब की? प्रधान जी की? फिर गलती किसकी है? आपकी। क्यों कौन सी गलती है? कि हमने अल्लाह के फरमान न फरमानी की, अल्लाह के रसूल की ना फरमानी। तो इस गुनाह का कफारा कौन अदा करेगा? जो गुनाह किया वही तो करेगा, वही तो किएगा। तो इसका कफारा अदा करोगे। और दूसरी बात बता दूं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बस समय और अपनी पार्टी की बातें सुनो और सुनाओ, ये भी तुम पर फर्ज है। जो यहाँ आकर के सुन रहे हैं उन पर अब ये फर्ज बनता है, जो सुन ले अपने कायदे आजम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की बातों को, वो और अपने भाइयों को सुनाए और दूसरे लोगों तक इन बातों को पहुंचाए, ये पहुंचाना आप पर फर्ज है। तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया, वत्ताअत, और अपने अमीर की इताअत करो। लेकिन हमने जब अपना अमीर माना ही नहीं, अपना नेता किसी को चुना ही नहीं, तो इताअत कैसी? है कोई हमारा अमीर? है कोई हमारा नेता? तो हम इताअत किसकी करें? लेकिन वही हदीस कह रही है, वही कुरान कह रहा है कि अपनी जमात में से पहले अपना एक नेता चुन लो, अपनी जमात में से पहले एक अमीर चुन लो और उस अमीर की इताअत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, बिला तफरीक मसलक व मिल्लत, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, हम उलमाए किराम ने, मुफ्तियाने इस्लाम ने अपने कायदे आजम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को अपना नेता चुन लिया है, अपना अमीर चुन लिया है। अब हमारा अमीर जो कहे उसकी इताअत हम पर फर्ज है, और अपने अमीर की आवाज से आवाज
आवाज मिलाकर लब्बैक कहते हुए अपने अमीर के साथ चलो, ये हम पर फर्ज है। क्या ऐसा कर सकते हो? करोगे? कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाएं। करेंगे? अल्लाह की कसम। चौथी बात, अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। चौथी बात सुन ले, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वल हिजरत, और हिजरत करो। मेरे नबी के सहाबा हिजरत का माना जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे ना, फिर भी पूछ रहे हैं अय्युल हिजरत अफजलो या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका सबसे बेहतरीन हिजरत कौन सी है, सबसे अफजलो आला हिजरत कौन सी है? तो आप ताजदारे मदीना है, इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा बेहतरीन हिजरत जानना चाहते हो, अफजलो आला हिजरत जानना चाहते हो तो सुन लो, अंतु हाजरा मा करहा रब्बु, वो काम ना करो जो तुम्हारे अल्लाह को पसंद नहीं है, वो काम ना करो जो तुम्हारे रसूल को पसंद नहीं है। अल्लाह उसके रसूल के नापसंदीदा कामों को नापसंदीदा समझो, अल्लाह उसके रसूल के नापसंदीदा बातों को नापसंदीदा समझो, अल्लाह उसके रसूल के नापसंदीदा अमाल को नापसंदीदा समझो। यही सबसे बेहतरीन हिजरत है। और 78 साल से हम क्या कर रहे हैं? जो अल्लाह अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उसी की मुखालफत कर रहे हैं। कुरान में जगह जगह आप उठा के देख लो, कुरान पढ़ ले, उलमाए किराम भी मौजूद है, अहले इल्म में भी मौजूद है, पढ़े लिखों का मजमा है। आप लोगों से कहता हूँ कुरान में कई जगहों पर मेरा रब इरशाद फरमा रहा है कि गैरों की आप हिमायत ना करें, गैरों की मदद ना करें, गैरों को ताकत ना पहुंचाए। और 78 साल से हम अपने भाई को छोड़ करके, अपनी पार्टी को छोड़ करके गैरों की मदद कर रहे हैं, गैरों की हिमायत कर रहे हैं, गैरों को ताकत दे रहे हैं। तो क्या ये कुरान के खिलाफ हम कर रहे हैं कि नहीं? हदीस मुस्तफा के खिलाफ जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो कब तक जो हम ये कर रहे हैं गुनाह, क्या हमें मरने के बाद इसका जवाब नहीं देना होगा? भाई यहाँ रहने के लिए तो कोई नहीं आया है, सब जाने ही के लिए तो आए हैं। जो आया है वो जाने ही के लिए आया है। फर्क इतना है तू चल मैं आता हूँ, इतना ही फर्क है। लेकिन जो भी आया है जाने के लिए आया। तो मुसलमानों अपने आक़िबत की फिक्र करो, अपनी फिक्र करो, अपने आने वाली औलादों की फिक्र करो, अपने आने वाले मुस्तक़बिल की फिक्र करो। आज हमारी ये हालत है तो हमारे आने वाली नस्लों का हाल क्या होगा, हमारी आने वाली औलादों का हाल क्या होगा? आज हम इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, खौफ और हरास में हम जी रहे हैं, तो हमारी औलादें किस तरह जिंदगी गुजारेंगी? हमारी औलादों का हाल क्या होगा? कभी आप लोगों ने सोचा? आप इस रुसवाई और इस जिल्लत से निकलना चाहते हैं? आप भी बाइज्जत होना चाहते हैं? निकलना चाहते हैं? तो कैसे निकलेंगे? कोई तरीका हो तो आप लोग बता दें। आपका बेटा आपसे पूछ रहा है, आपका भाई आपसे पूछ रहा है, आप लोग मुझे कोई तरीका बता दे। अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, अगर आपके पास कोई अमल हो तो बता दे, कोई तरीका हो तो बता दे, या कोई वजीफा हो तो बता दे कि हम लोग जिल्लत और रुसवाई से निकल जाए। दाढ़ी टोपी वाले को लोग आतंकवादी ना कहें, हमारी मस्जिदों की खुदाई ना हो, हमारे मदरसों के जांच रुक जाए। कोई तरीका हो तो आप लोग बता दें। आपका बेटा आपसे पूछ रहा है, तो प्रधान जी से नहीं पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। कोई तरीका है जी? पार्टी तो बनी है ऑलरेडी, 2008 में पार्टी बनी है। कोई तरीका और है? क्या पीस पार्टी अपनी पार्टी नहीं है? पीस पार्टी ही तो अपनी पार्टी है, पीस पार्टी ही तो क़यादत की पार्टी है अपनी। तो ये पार्टी तो ऑलरेडी है, इसके अलावा कोई तरीका हो तो? डॉक्टर अयूब साहब 2008 से चिल्लाते रहे, गांव-गांव जाते रहे, धूल खाते रहे, लेकिन क्या कमी है मेरे कायद में? है कोई कमी? अल्लाह की कसम पीस पार्टी का वजूद ना था तब भी लोग डॉक्टर मोहम्मद अयूब को जानते थे। क्यों प्रधान जी नहीं जानते थे? पार्टी तो बनी है 2008 में, लेकिन मेरे कायद को पीस पार्टी की वजह से लोग नहीं जानते, बल्कि मेरे कायद की वजह से पीस पार्टी को लोग पहचाने हैं। और रही पढ़ाई की बात, डिग्री की बात, तो जितने नेता हैं, चाहे वो अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, राहुल जी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, सबकी डिग्रियां एक तरफ रख दो और अकेले मेरे कायद डॉक्टर मोहम्मद अयूब की डिग्रियों को एक तरफ रख दो, तो अल्लाह की कसम डॉक्टर अयूब की डिग्रियां भारी होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? मालो दौलत की बात ले लो, अखिलेश यादव के प्रॉपर्टी को एक तरफ, मायावती जी के प्रॉपर्टी को एक तरफ, योगी मोदी की प्रॉपर्टी को एक तरफ, और हमारे कायद की प्रॉपर्टी को एक पल्ले में रख दो, तो अल्लाह की कसम डॉक्टर मोहम्मद अयूब की प्रॉपर्टी भारी पड़ जाएगी। तो कमी क्या है? आज मेरा कायद गली गली जा रहा है, धूल खा रहा है, गर्मी हो या सर्दी बर्दाश्त कर रहा है। आखिर वजह क्या है? कि उनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो हुकूमत कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है वो आदेश दे
रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं, वो हाकिम है, और मेरे कायद के पास सब कुछ है, और गली गली का धूल चाट रहा है, गली गली धक्के खा रहा है। आखिर कमी क्या है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या कमी है? फिर मेरा कायद क्यों धूल खा रहा है? कमी मैं बताता हूँ, कमी ये है कि अखिलेश का समाज उनके साथ में है, मायावती जी का समाज उनके साथ में है, योगी और मोदी का समाज उनके साथ में है, और मेरे कायद का समाज इनके साथ में नहीं है। और सारे समाज को अगर मिला दिया जाए, योगी मोदी, अखिलेश यादव, बहन मायावती, सारे समाज को एक तरफ मिला दिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा समाज सारे समाज से भारी है, तादाद में सबसे ज्यादा है, और हमारा कायद गलियों का चक्कर लगा रहा है। तो क्या इस चक्कर से निकालना चाहते हो कि नहीं? इस रुसवाई से बचना चाहते हो कि नहीं? कितने लोग बचना चाहते, जरा हाथ उठा दे। सब बचोगे? तो कोई तरीका है? आपका बेटा आपसे सवाल कर रहा है, अपने भाइयों से मैं पूछ रहा हूँ, आपका बेटा एक आलिम दीन हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सुबह से भूखा भी हो और प्यासा भी हो, मालूम अल्लाह की कसम, ना रोटी खाया हूँ ना चावल का एक दाना खाया हूँ। हाँ, पानी की कसम नहीं खा सकता हूँ, पानी की कसम नहीं खा सकता हूँ, लेकिन ना मैंने रोटी खाई है ना चावल खाया है, सुबह से भूखा हूँ। कल रात में खाना खाया था इसी वक्त, 24 घंटे हो गए। एक आलिम दीन हूँ, क्या मेरी ये शान है कि भूखे प्यासे गलियों में घूमूं? ये मेरी शान है? ये हमारे कायद की शान है? एसी में रहने वाले, एसी में सोने वाले, एसी में बढ़ने वाले, 1 घंटा अगर अपने डॉक्टरी में गुजारते तो हजारों रुपए आ जाते। इनकी ये शान है? तो मुसलमानों कब जागोगे? अल्लाह की कसम, तो आपकी हमदर्दी इनके सीने में है, आपका दर्द मेरे सीने में है। आप हंस रहे हैं, रब्बे काबा की कसम सीने में आग लगी है, सीना जल रहा है। अल्लाह की कसम, जो दर्द सीने में है बयां नहीं कर सकता हूँ, बयां करूँ तो किस ज़बान से बयां करूँ? अल्लाह की कसम, जो सीने में आग लगी हुई है, जो सीने में जलन है, और ये जलन अपनी भाइयों की है, आने वाली नस्लों की, हमारी बहन बेटियों की हिफाजत की, और आप लोग हंस रहे हो। तो कोई तरीका है? बता दो। आखिरी बात पूछ रहा हूँ, है कोई तरीका? एक आलिम दीन आपसे सवाल कर रहा है, कोई तरीका नहीं है? अगर मैं तरीका बताऊं तो अमल करोगे? कितने लोग अमल करेंगे? सब करोगे? आप अगर बाइज्जत बनना चाहते हो और ये चाहते हो कि हमारे मदरसों की जांच रुक जाए, टोपी और दाढ़ी वालों को देखकर लोग तासुब ना करें, टोपी और दाढ़ी वालों को लोग हकारत भरी नजरों से ना देखें, तो एक तरीका बता रहा हूँ, बड़ा आसान तरीका है। 10 रुपए का खर्च है, अगर आप लोग 10 रुपए खर्च कर दिए तो अल्लाह की कसम तासुब हमसे खत्म हो जाएगा। लोग हमें तासुब भरी नजरों से ना देखेंगे, लोग हमें हकारत भरी नजरों से ना देखेंगे। ये तो, और यही नहीं, अल्लाह की कसम लोग झुककर सलाम करने लगेंगे। सिर्फ 10 रुपए का खर्चा कर सकते हो? करोगे? कुछ नहीं करना है। जैसे हम अपना झंडा लगाया ना मिलादे मुस्तफा अलैहिस्सलाम वाला, ऐसे ही एक झंडा अपनी पार्टी, पीस पार्टी का अपने घरों के छतों पे लगा लो। लगा सकते हो? कितने लोग लगा सकते हैं? लगा सकते हो? जानते हो झंडे की पहचान क्या होगी? अल्लाह की कसम, आप बोलो या ना बोलो, झंडा लगा करके घर में जाकर के सो जाओ। ये झंडा इस बात की शहादत पेश करेगा, ये झंडा इस बात की गवाही देगा कि यहाँ के लोग जितने हैं सबके सब पीस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, पीस पार्टी को पहचान लिए हैं, अपनी पार्टी पीस पार्टी को इन लोगों ने अपना लिया है और अपना झंडा, अपना अलम उठा लिया है। आपको लोग सलाम करने लगे, तासुब खत्म हो जाएगी, आपको आतंकवाद ना कहा जाएगा। ये ताकत है इस झंडे की। क्या ये कर सकते हो? करोगे? अल्लाह उसके रसूल का वास्ता करोगे? अगर ये झंडा लगा लिया तो बलरामपुर शहर नहीं, लखनऊ की धरती नहीं, अरे दिल्ली का वो संसद भवन हिल जाएगा, ललसा बरंदाम हो जाएंगे लोग, और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुसलमान अपनी पार्टी को पहचान लिया है, अपनी क़यादत को समझ लिया है, अपने झंडे को पहचान लिया है, अपने आलम को उठा लिया है। अब मकबूलियत हमारी होगी, इज्जत हमारी होगी, वकार हमारा होगा। लेकिन शर्त ये है कि जब आप झंडा लगाएं तो ये सोचकर झंडा ना लगाएं कि पीस पार्टी डॉक्टर अय्यूब की पार्टी है। मैं हुजूर वाला के सामने बोल रहा हूँ, इनकी पार्टी नहीं है। मैं तो हर जगह बोलता हूँ तो यही कहता हूँ कि आप इस गुमान में ना रहे
آپ کی پارٹی نے، ہاں آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے نیتا ہیں، آپ امیر ہمارے ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن پیس پارٹی آپ کی پارٹی نہیں ہے، پیس پارٹی ہماری پارٹی ہے، پیس پارٹی آپ کی پارٹی ہے، پیس پارٹی مظلوموں کی پارٹی ہے، پیس پارٹی کمزوروں کی پارٹی ہے، پیس پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے، آج تک جسے انصاف نہیں ملا ہے، انصاف چاہنے والوں کی پارٹی پیس پارٹی ہے۔ دل میں آپ یہ ارادہ کرو گے اپنے آپ کو یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ پیس پارٹی ہماری پارٹی ہے، یہ جھنڈا ہمارا جھنڈا ہے، اور آج سے ہر کوئی یہ کو سوچ لے، ہماری ملت کا نوجوان، ہمارے قوم کا نوجوان یہ سوچ لے، ارے ڈاکٹر ایوب ہوں گے پڑھن گنج والے، ہم خود ڈاکٹر محمد ایوب ہیں اور ہماری ہی پارٹی پیس پارٹی ہے۔ یہ ارادہ کر کے جب آپ جھنڈا لگا لو گے، رب کعبہ کی قسم کامیابی آپ کے قدموں کو چومتی نظر آئے گی، کامیابی آپ کے قدموں کو بوسہ دیتی نظر آئے گی، آپ کا وقار بڑھ جائے گا، آپ کی عزت بحال ہو جائے گی۔ اتنا کام کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، کر لو گے؟ دست بستہ میں عرض کرتا ہوں اور کچھ نہ کہتے ہوئے کہ اللہ اس کے رسول کا واسطہ اپنے اپنے گھروں کے چھتوں پہ اپنا علم، اپنا جھنڈا، اپنی نشانی لگا لینا، اللہ کی قسم دنیا میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی آپ کی قدم کو بوسہ لیتی نظر آئے گی۔